बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. If you are watching my video first time, you can get the notification of new videos by hitting the bell icon. But if you want to watch my previous videos, please visit my channel. Let's start today's video. Today we are going to solve the exercise of chapter Dorothy Meet the Scarecrow from the book New Oxford Modern English Class 3, and it is the third edition of this book. In our previous video we have done the translation and reading of this book. Let's start solving the exercise. The first part of exercise is comprehension. Number 1. Answer the following questions. A. What is the road made of? The answer of this question is the road is made of yellow bricks. यानी जो सड़क थी वो पीले रंग की ईंटों से बनी हुई थी. Next question is question B. What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? The answer of this question is Dorothy's pet is called Toto and he is a dog. The next question is question C. Why is the scarecrow in the field? यानी scarecrow खेत में क्यों है? The answer of question C is the scarecrow is used in the fields to scare away birds. यानी scarecrow को खेतों में परिंदों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Our question D is what does Dorothy do to help the scarecrow? Dorothy scarecrow की मदद के लिए क्या करती है? The answer is Dorothy helps the scarecrow to get it down from the pole. यानी डॉरेथी ने स्केयरक्रो की मदद उसको पोल से नीचे उतार कर की. Our next question is question E. What does the scarecrow do to help Dorothy? स्केयरक्रो ने डॉरेथी की मदद कैसे की? The answer is the scarecrow carries the basket for Dorothy. स्केयरक्रो ने डॉरेथी की टोकरी उठाकर उसकी मदद की. Our next question is question F. What did the scarecrow want to ask the great Oz for? Scarecrow great Oz से यानी अजीम ओज से क्या मांगना चाहता था? The answer of this question is the scarecrow wanted to ask for a brain. यानी scarecrow दिमाग मांगना चाहता था. Our next question is question G. How do we know the scarecrow is kind and polite? हमें कैसे पता चला कि scarecrow मेहरबान और नरम दिल है? The answer is the scarecrow helped Dorothy to carry the basket. That shows his kindness. यानी scarecrow ने Dorothy की मदद की थी उसकी टोकरी उठाने में. से पता चलता है कि वो मेहरबान है. The next question is question H. Can you explain why the scarecrow is afraid of a lighted match? क्या आप इस बात की वजाहत कर सकते हैं कि स्केयरक्रो जलती हुई दिया सलाई से क्यों डरता है? इस क्वेश्चन का आंसर है A lighted match can burn the scarecrow, so he is afraid of it. क्योंकि जलती हुई दिया सलाई स्केयरक्रो को जला सकती है, इसलिए वो इससे डरता है. And the last question is question I. The scarecrow says that he doesn't have a brain. Scarecrow ने कहा कि उसके पास दिमाग नहीं है. Is it possible to walk and talk without a brain? क्या ये मुमकिन है कि आप दिमाग के बगैर बातें कर सकें और चल सकें? The answer of this question is no, it is not possible. नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है. We know that the story is just a fairy tale. हम जानते हैं ये सिर्फ एक परियों की कहानी है. The next question is question number 2. Answer the questions about these lines from the story. इस स्टोरी से जो कुछ लाइंस आपको दी गई हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, इनको आपने आंसर करना है. पहले इन लाइंस को रीड करते हैं. I understand how you feel.
मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो वाकई उसके लिए अफसरदा थी। क्वेश्चन ए इज, हु इज़ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की कौन है? द आंसर इज डोरथी इज़ द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की डोरथी है। क्वेश्चन बी इज, टू हुम वॉज द लिटिल गर्ल सेइंग दिस, ये बात छोटी लड़की किससे कह रही थी? The answer of this question is the little girl was saying this to the scarecrow. ये बात वो लड़की scarecrow से कह रही थी। The third question, question C is, why does she feel sorry for him? उसके लिए अफसरदा क्यों महसूस कर रही थी? The answer is the scarecrow has no brain. Scarecrow के पास दिमाग नहीं था। That makes her feel sorry for him. और इसी वजह से वो उसके लिए अफसोस महसूस कर रही थी। The last question is question D. What happened next? इसके बाद क्या हुआ? The answer of this question is, she took the scarecrow with her to the land of Oz. वो scarecrow को अपने साथ ओज की सल्तनत में ले गई। The next question is question 3. Which of these sentences are true or false? हमने true और false sentences बताने हैं। Sentence A is, the scarecrow never gets tired. Scarecrow कभी भी नहीं थकता। Yes, it is true, क्योंकि वो भूसे से बना हुआ था। Second sentence is B, the scarecrow is frightened of the farmer. क्या scarecrow किसान से डरता था? नहीं, it's false. ये ट्रू नहीं है, बिकॉज वो तो जलती हुई दिया सलाई से डरता था। The third sentence is, the great Oz lives in the diamond city. ये फॉल्स है, क्योंकि वो डायमंड सिटी में नहीं बल्कि एमरल्ड सिटी में रहता था। Sentence D is, Dorothy has a dog called Coco. ये भी फॉल्स है, बिकॉज उसके डॉग का नाम टोटो था। E is, the scarecrow is wearing a blue hat. It is true, बिकॉज उसने ब्लू हैट ही पहना हुआ था। The section B of exercise is working with words, यानी अल्फाज के साथ काम करना। Articles are used before nouns. Articles को noun से पहले यूज़ किया जाता है। A used before nouns starting with consonants. ऐसे nouns जो consonant से start होते हैं उससे पहले हम A यूज़ करते हैं। And used before nouns starting with vowels. और जो nouns vowels से start होते हैं उससे पहले हम N यूज़ करते हैं। vowels 5 words होते हैं, A, E, I, O and U, और इसके अलावा बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन 1 इज, राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। अभी जो नाउन्स हमें गिवन है इससे पहले जो ब्लैंक्स हैं इनको हम ए और एन लगाकर फिल करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड है रोड, जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम ए अप्लाई कर देंगे। बी इज़ फेंस, ए भी कॉन्सोनेंट है, सो हम यहाँ पे भी ए लगाएंगे। थर्ड इज़ आई, जो कि वाउल से स्टार्ट हो रहा है, हम एन लगाएंगे। डी इज़ गार्डन, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ए यूज़ होगा यहाँ पे। ग्रीन में भी ए और ऑरेंज में एन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। यानी वर्ड की एक लिस्ट दी गई है और हर लिस्ट के अंदर एक वर्ड ऐसा है जिसको करेक्टली स्पेल आउट नहीं किया गया। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज मल्टी सिलेबल वर्ड्स इन योर नोटबुक, और इनको आपने ठीक करके अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट लिस्ट है हमारे पास फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। सेकेंड लिस्ट है एस्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज एंड एक्सीडेंट। थर्ड इज डिसाइडेड, dismayed, displayed, destroyed and deserted. D is quickly, queue, quietly, queen and question. यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट जो लिस्ट हमें गिवन है ए, उसमें लास्ट वर्ड यानी फ्राइड को ठीक से स्पेल नहीं किया गया। सेकंड लिस्ट में एक्सक्यूज़, जो कि सेकंड लास्ट वर्ड है एक्सीडेंट से पहले, उसको गलत स्पेलिंग की गई है। और थर्ड है डिसाइडेड, जो कि फर्स्ट वर्ड है थर्ड लिस्ट का। देन डी इज़ क्वाइटली, इसको भी ठीक से स्पेल आउट नहीं किया गया, हम इसको करेक्ट करके लिखते हैं। So the correct spellings of these words are A, F-R-I-E-D, fried, B, E-X-C-U-S-E, excuse, C, D-E-C-I-D-E-D, decided, and D,
Quietly, quietly. Question number 3 is say these words. इन वर्ड्स को बोलें. Each word has a silent letter. हर वर्ड के अंदर एक साइलेंट लेटर मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल W in right एंड K in no. यानी इन दोनों को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ये साइलेंट वर्ड्स हैं. साइलेंट लेटर्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड बट आर नॉट प्रोनाउंस. राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर. जो आपको गिवन वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से आपने साइलेंट लेटर्स को फाइंड आउट करना है. तो चलिए वर्ड्स को रीड करते हैं. फर्स्ट इज sword, देन wrong, इसके बाद है answer, नेक्स्ट इज knee and no. In next line there is knife, next is right, then light and then fright. sword में हमारे पास W साइलेंट है, wrong में भी W साइलेंट है, answer में भी W is silent एंड knee में K साइलेंट है. नो में हमारे पास K साइलेंट है, नाइफ में भी K, राइट में GH, लाइट में भी GH और फ्राइट में भी GH. द फोर्थ क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी. अपने इन वर्ड्स को इस स्टोरी के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. फर्स्ट सेंटेंस इज ए. दिस इज पुट राउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स इन और आउट, यूजुअली मेड ऑफ वुड. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी एरिया या इलाके के इर्द गिर्द लगाया जाता है किसी चीज़ को अंदर या बाहर सेव करने के लिए, और ये अक्सर लकड़ी से बनी होती है. तो ये क्या चीज़ है? ये है फेंस यानी कि बाड़, जिसको किसी चीज़ के इर्द गिर्द लगाया जाता है. नेक्स्ट इज दिस इज़ वर्न ऑन द हेड टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ. एक ऐसी चीज़ है जिसको सर पर पहना जाता है सर को गर्म रखने के लिए या फिर धूप यानी सूरज की गर्मी से बचाने के लिए. यस, इट इज़ हैट यानी टोपी. इसको सर्दियों में सर को गर्म रखने के लिए पहना जाता है और गर्मियों में धूप से बचने के लिए. द नेक्स्ट इज अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हेड एट द अदर. एक ऐसी चीज़ है जो धात से बनी होती है और इसका एक सिरा बहुत तेज़ होता है और दूसरी तरफ एक गोल सा सर बना हुआ होता है. जी हाँ, ये धात से बनी हुई चीज़ पिन है जिसका एक किनारा तो बहुत तेज़ होता है और दूसरे पर एक सिरा बना होता है गोल सा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज डी. दीज लुक लाइक लार्ज माइस. ये बड़े से चूहे की तरह लगता है. दे हैव लॉन्ग टेल्स एंड पॉइंटेड स्नाउट्स. इनकी लंबी दुम होती है और नोकदार मुंह होता है. इसका आंसर है रैट्स. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़बान के बारे में सीखना. इन बुक टू में यू लर्न अबाउट नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स. आपने नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में पढ़ा था. डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट नाउन्स? क्या आप याद कर सकते हैं हमने नाउन्स के बारे में क्या पढ़ा था? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग. नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल सैट ऑन द फेंस. लड़की बार पर बैठी. द अंडरलाइंड वर्ड्स आर नाउन्स यानी जिनको भी अंडरलाइन किया गया है ये दोनों वर्ड्स नाउन है. दे आर थिंग्स, ये चीज़ें हैं यानी भी किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहा जाता है. Our first question is write these sentences in your notebook in the correct order. जितने भी आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं ए से लेके जी तक, इनको आपने अरेंज करके लिखना है. इन सबको अरेंज करने के बाद हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है डी सेंटेंस, सेकंड पे है एफ, थर्ड पे है सी, फोर्थ पे बी, फिफ्थ पे ई, सिक्स पे ए और सेवन पर जी सेंटेंस. सेकेंड क्वेश्चन है नाउ अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस दैट यू जस्ट रोट डाउन. अभी जो आपने अरेंज करके सेंटेंस को लिखा है इन सब सेंटेंसेस में से आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना है. हमारे सेंटेंस ए में जो नाउन्स हैं वो है मैन, नोट, पॉकेट. बी में है टैक्सी एंड रोड. सी में है टैक्सी, मैन. डी में है बेंच, बस. नेक्स्ट है ई में ड्राइवर, मनी. F में bus and in G there is taxi and house. The next question is proper and common nouns. Question 3.
द नाउन्स अबव आर कॉमन नाउन्स। ऊपर जो भी नाउन्स बताए गए हैं वो कॉमन नाउन्स हैं। वी यूज़ अ प्रॉपर नाउन फॉर द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए कोई नाम बोलते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर और इनको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। सर्कल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द बॉक्स गिवन बिलो। आपको नीचे दिए गए बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इनमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को सेपरेट करना है। पहले रीड कर देते हैं हमें कौन से नाउन्स गिवन है। फर्स्ट इज सारा, सेकंड इज फेस्टिवल, नेक्स्ट इज पाकिस्तान, देन कराची, नेक्स्ट इज ईद, देन रिवर, country and girl. The common nouns are festival, river, country and girl. The proper nouns in the given nouns are Sarah, Pakistan, Karachi and Eid. The next section of this exercise is section D. It is listening and speaking. In the story, Dorothy says, इस कहानी में डोरथी ने कहा, You didn't just speak, तुम अभी बोले नहीं। डिड यू, क्या तुम बोले। शी मेक्स अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल बनाया बाय एडिंग अ क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट, और उसने क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट में ऐड किया। इसकी एग्जांपल है, वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग टू लूज, हैव वी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या हमारे पास कुछ है। इट्स नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। इज़ इट, क्या ये तुम्हारा है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स, यानी आपने पेयर्स में काम करना है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय मैचिंग स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को मैच करना है विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स, इनके सही क्वेश्चन टैग्स के साथ। हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। थर्ड में तो इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट 2 जो कॉलम्स हैं इनको हमने मैच करना है। थर्ड कॉलम में बताया गया है, नोटिस दैट ऑल कंट्रैक्शंस इन द एक्सरसाइज आर नॉट प्रोनाउंस फुली, इनमें से कुछ वर्ड्स जिनको फुली प्रोनाउंस नहीं किया गया, दीज आर नॉन एज वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, इनको वर्ड्स की वीक फॉर्म्स कहा जाता है। इसमें हम ए को मैच करेंगे हैवंट दे के साथ, बी को शैल वी के साथ, सी को आरंट यू के साथ और डी को आरंट दे के साथ। ई को मैच करेंगे हैजंट इट के साथ, एफ को विल यू के साथ और जी को डोंट यू के साथ। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर टीचर विल रीड सम स्टेटमेंट्स, आपके टीचर कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगी। लिसन केयरफुली, मुहतात होकर सुने। देन ऐड अ क्वेश्चन टैग, और उसमें क्वेश्चन टैग को ऐड करें। ये क्वेश्चन आप अपने टीचर या फ्रेंड्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। The next part of exercise is composition. What do Dorothy and the scarecrow say to the great Oz when they meet him? जब Dorothy और scarecrow ओज से मिले तो उन्होंने उससे क्या कहा। Talk about how they could ask politely for what they want. इस बारे में बात करें कि वो नरमी से कैसे मांग सकते हैं जो उन्हें चाहिए। Then write a short conversation. एक छोटी सी conversation लिखनी है उनकी। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1, they are angry, aren't they? Number 2, you have done homework, haven't you? 3, she is naughty, isn't she? Number 4, he has private jet, hasn't he? Number 5, we are eating, aren't we? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें उन्होंने ऑज के साथ कन्वर्सेशन करनी थी, उसका आंसर इस तरह से होगा। ये आंसर मैंने अपने परसेप्शन और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बनाया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी बड़े टीचर या फ्रेंड के साथ या अपने किसी सिबलिंग के साथ मिलकर। स्टोरी की किसी और तरीके से एंडिंग भी कर सकते हैं आप। द आंसर इज, डोरथी, टोटो एंड द स्केयरक्रो रीच द एमरल्ड सिटी एंड मेट द ग्रेट ओज. Scarecrow asked for a brain and Great Oz told him that certainly I can give you a brain. First, I will cut your head to place the brain into your head. You will feel pain. Scarecrow told him that I am stuffed with straws. I can't feel pain. Don't worry about me. After that, the Great Oz placed the brain and stitched his head again. Now, Scarecrow was very happy, and no one will call him a fool. The next section of this exercise is section F, and it is about numbers. Question 1 is, read these words and write the numbers in the box. इन नंबर्स को रीड करने के बाद अपने गिवन बॉक्सेस के अंदर इसको फिल करना है। फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे 10, सेकंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ में 40 एंड लास्ट इज़ 50।
Our second question is say these numbers and write them in words. आपको इस टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनको आपने रीड करना है और इनके नेम्स को राइट करना है. So the names of these given numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इसी तरह से हमने 50 तक सभी वर्ड्स के नेम्स को लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. हमारी थर्ड रो में जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. In the second last row, the names of the numbers are 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. In the last row, the numbers are 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. The next question is question number 3. What comes next? यानी जो गिवन वर्ड है इसके बाद कौन सा नंबर आता है. कॉपी दीज नंबर्स, यानी नंबर्स को आपने राइट डाउन करना है यहाँ पर. थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर गिवन है दैट इज़ 60 और 60 के बाद जो नंबर आता है दैट इज़ 61. इसके बाद है 70 और 70 से नेक्स्ट नंबर होता है 71. इस तरह नेक्स्ट रो में है 80, 80 के बाद आएगा 81. द फोर्थ नंबर इज़ 90 और 90 के जो अगला नंबर है दैट इज़ 91. लास्ट नंबर इज़ 100 और 100 से अगला नंबर होता है 101. 4 is your teacher will call out some of the numbers above. आपकी टीचर ऊपर दिए गए नंबर में से कुछ नंबर्स बोलेंगी. राइट देम एज वर्ड्स, और उनको आपने वर्ड्स की यानी उनके नेम्स लिखने हैं स्पेलिंग के साथ. टीचर के अलावा ये प्रैक्टिस आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं. दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो से हम दोबारा से क्वेश्चन आंसर का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.